Good morning, ninth class. Hope so you all are good, fit and fine at home. Okay, Razi, in last classes we have started tissue chapter, and today we are going to discuss the last topic of this chapter. Okay, and I think we have studied about the types of animal tissue. First is epithelial tissue and its subtypes also. We also studied about the muscular tissue. Three types of muscular tissue: striated, unstriated, cardiac muscles. Today we are going to discuss about the connective tissue and types of connective tissue: blood, bone, ligament, tendon, cartilage, aerial and adipose tissue. And last, that is nerve tissue, meaning we are going to study about the nerve cells and connective tissue. Okay, Razi? Without wasting no time, I am going to turn on the connective tissue. As a connective tissue, what is connective? Connective वर्ड अपने आप में बता रहा है कोई चीज का कनेक्शन है, कोई क्या है, किसी चीज को कनेक्ट कर रहा है किसी के साथ, और हम कह सकते हैं अटैच करना, कनेक्ट करना, दैट इज कनेक्टिव टिश्यू. तो हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू क्या होगा राजे? कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट्स द जॉइंट्स, कनेक्ट्स और ज्वाइन, किस चीज को ज्वाइन करना और कनेक्ट करना, एक ही बात हुई ना. आइदर इट कनेक्ट्स और आइदर इट ज्वाइंस द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टुगेदर. आइदर इट कनेक्ट्स और आइदर इट ज्वाइंस द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टुगेदर. बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को एक दूसरे के साथ या तो कनेक्ट करेगा, नहीं तो फिर क्या करेगा? ज्वाइन करेगा टुगेदर. कहते हैं द सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आर लूजली पैक्ड. अब some characteristics of the cells of the connective tissue. In last types also we have studied about the characteristics of the types of the tissues. So the connective tissue cells are loosely packed. Okay, a space between the cells are filled with the jelly-like material, that is matrix. Now we call cells are loosely packed. Loosely packed meaning there are space between the cells, and that space is filled with a jelly-like substance that we call matrix. उसको एक नेम दे दिया matrix. So फिर now what are the types of the connective tissues? First is blood. You all know what is blood. Blood क्या है? The fluid that is present in our body. You know, blood performs a lot of functions in our body. It carries food, it transports gases, है ना, it protects our body against disease, it keeps us healthy. मतलब so many functions are performed by the blood in our body. Okay, now you know blood further contains plasma, that is the liquid portion of the blood, and in plasma there are so many cells, or you can say corpuscles. Either हम क्या cells word use कर ले, either आप corpuscles word use कर ले, same word है. So many cells are scattered or embedded in the plasma. So mostly three types of cells. One is red blood cell, that meaning RBCs, capital R, capital V, capital C, or how much छोटी सी S. RBCs, white blood cells, WBCs, and platelets. These three types of cells are present in the plasma of the blood. Okay, now Razi, what is the function of RBCs? Red blood cells का क्या function है? It carries oxygen to the different parts of the body. It carries oxygen to the different parts of the body. तो हमारे पास क्या है? जो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, यू नो व्हाई ब्लड इज रेड इन द कलर. ब्लड इज रेड इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन मीनिंग आयरन पिगमेंट, एंड दैट हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इनटू रेड ब्लड सेल्स. Meaning red blood cells have hemoglobin, that's why they are red in the color and provide red color to the blood. And hemoglobin हमारे पास क्या है? It carries oxygen. Hemoglobin का function क्या है? It carries oxygen molecule. So RBCs help in the transport of oxygen gas to the different cells of our body. क्योंकि हमारी बॉडी के लिए ऑक्सीजन नेसेसरी है ना, ऑक्सीजन के बिना तो हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते. Then that oxygen is transported by the RBCs, red blood cells. Second is the WBCs. Now what is the full form of WBCs? White blood cells. And WBCs are acting as soldiers of our body. जैसे क्या है, हमारी आर्मी है इंडिया की, तो वो क्या है, प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिया को क्या है, बॉर्डर्स पे क्या है, तैनात है. सेम हमारी बॉडी की आर्मी कौन है? WBCs.
white blood cells, meaning they protect our body against the disease. Whenever any foreign particle enters in our body, WBCs give alert message to immune system of our body and produce antibodies that antigens further fight with the foreign particles. So overall WBCs help in producing immunity or in protecting us against the disease. Okay, that's it. Next, the last one is platelets. Now, what is the function of platelets? Platelets में क्या है? Sometimes हम क्या है, हमारे मम्मा हम क्या है किचन में काम कर रहे होते हैं और आपको क्या है चाकू से स्मॉल सा कट लग जाता है, नहीं तो ब्लेड मान लो कभी किसी के लग गया, एक स्मॉल कट लग गया तो वहाँ से क्या है ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो जाती है. व्हाट डू यू नोट्स? आपको पता है वो ब्लीडिंग अपने आप आफ्टर सम टाइम बंद हो जाती है और जहाँ पे हमारे क्या है वो चाकू लगा होता है वहाँ पे एक ब्लड का क्लॉट बन जाता है, वहाँ पे ऐसे ब्लड चिपका होता है. व्हाट इज दैट? क्लॉटिंग. तो platelets help in the clotting of the blood whenever blood runs from out of our body. तो क्या होता है? Platelets produce a protein that is fibrin or you can say fibrinogen, जो further क्या produce करता है? Thread-like structures, a network of thread-like structures that help in the clotting of the blood. So indirectly, what is the function of platelets? It helps in the clotting of the blood. It helps in the clotting of the blood. अगर ऐसे so the blood transport ये इन्होंने functions दिए हैं. The blood transport gases, digestive food, hormones, waste material, etc. Okay. Next है second हमारे पास connective tissue क्या है? Bone. Second connective tissue is bone. कहते हैं what is bone? We know it. Bone क्या होता है? Hard and strong tissue. हमारी बॉडी में bone क्या है? That is hardest and strong tissue of our body. We call that bones. पता है ना सभी को bones कितनी bones होती हैं बॉडी में? अब जो आप रिप्लाई करो मैसेज में कितनी bones होती हैं हमारी बॉडी में? बहुत ही जनरल सा जीके का क्वेश्चन है. And it consists of cells which are embedded in the hard matrix containing calcium and phosphorus. मोस्टली क्या है जो बोन होती है हमारी इसके सेल्स क्या है? डेट आर एम्बेडेड इन द हार्ड मैट्रिक्स. मैट्रिक्स को पता है जो जेली लाइक सबस्टेंस होता है, एक मैट्रिक्स में क्या है इसके सेल्स क्या एम्बेडेड होते हैं बोन के, और जो हमारे पास मैट्रिक्स होता है उसमें क्या प्रेजेंट होता है? कैल्शियम एंड फास्फोरस. सभी को पता होगा ना मोस्टली बोन्स क्या है कैल्शियम से ही बनी होती हैं. फास्फोरस कंपाउंड्स कहते हैं बोन फॉर्म्स द फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी एंड सपोर्ट द बॉडी एंड द मेन ऑर्गन ऑफ द बॉडी. यू ऑल नो दैट जो हमारा स्केलेटन सिस्टम है दैट इज बेस्ड अपॉन द बोन्स. सो बोन्स क्या कर रही है? जो हमारी पूरी बॉडी को एक फ्रेम दे रही है, जो हमारी से बॉडी जो हमारी क्या है पूरी की पूरी बॉडी फॉर्म हो रही है, इसे एक स्ट्रक्चर एक शेप मिली हुई है, एक फ्रेम मिला हुआ है. स्किन के अंदर जितने भी हमारे पार्ट्स हैं उनको क्या है हम कह सकते हैं प्रोटेक्शन मिली हुई है, उनको एक सपोर्ट मिली हुई है. तो वो सब किसके कारण है? ड्यू टू बोन्स. ओके, तो हमारी पूरी की पूरी बॉडी का फ्रेमवर्क कौन है? बोन्स है. ओके, जो एक पार्ट को दूसरे पार्ट से कनेक्ट भी कर रहे हैं. नेक्स्ट हमारे पास क्या है? लिगामेंट. नाउ बोन क्लियर है. लिगामेंट्स क्या होते हैं? लिगामेंट्स आर फ्लेक्सिबल टिश्यूज विच जॉइन बोन्स टुगेदर एंड हेल्प इन द मूवमेंट. अब हमारी जो आर्म है इसकी जे वाली बोन एंड जे वाली बोन, इन दोनों को क्या है इस जगह क्या है जो ज्वाइन किया हुआ है कनेक्ट किया हुआ है वहां पे क्या प्रेजेंट होता है? जैसे लिगामेंट प्रेजेंट होता है. और लिगामेंट क्या होता है? फ्लेक्सिबल टिश्यू होता है. आप अपनी लेग है उसे बेंड कर सकते हो, आर्म है उसे बेंड कर सकते हो ना. क्यों? कैसे मूवमेंट हो रही है? बोन तो हार्ड पार्ट है, अगर हम किसी हार्ड पार्ट को मूव करते हैं तो वो ब्रेक हो जाता है, क्योंकि जब टू बोन्स क्या है ज्वाइन हुई है उसमें जो क्या है उसे ज्वाइन करने की जगह क्या है? ज्वाइन है, जो उसका ज्वाइंट की जगह क्या प्रेजेंट है? एक फ्लेक्सिबल टिश्यू प्रेजेंट है जिसे हम क्या बोल रहे हैं? लिगामेंट. एंड दैट फ्लेक्सिबल टिश्यू हेल्प इन द मूवमेंट. तभी तो आर्म ऐसे बेंड कर सकते हो आप, लेग्स को जैसे भी बेंड कर सकते हो ना. दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द लिगामेंट एट द जॉइनिंग पॉइंट ऑफ टू बोन्स. जो बोन्स को ज्वाइन कर रहा है साथ साथ क्या है जो फ्लेक्सिबल होने के कारण इट हेल्प इन द मूवमेंट. हाँ जी, नेक्स्ट टिश्यू इज टेंडन्स. नाउ व्हाट आर द टेंडन्स? हाँ जी, tendons are fibrous tissue which join muscles to bones help in the movement. देखिए लिगामेंट में क्या था? It joins bones, meaning one bone को second. जे बोन मेरी इस बोन से join है, that is due to the ligament.
बट टेंडन में क्या है, जैसे इट जॉइंस बोन्स विद द मसल्स, जो हमारी बॉडी में मसल्स है, मसल्स हमने पहले मस्कुलर टिश्यू किया था ना, स्ट्रेटेड मसल्स हैं, नॉन स्ट्रेटेड मसल्स हैं, तो हमारी बॉडी की जो बोन्स है, जो हमारा बॉडी का फ्रेमवर्क दैट इज फॉर्म्ड बाय द बोन्स, तो बोन्स को किससे कनेक्ट कर रहा है, हमारी मसल्स से कनेक्ट कर रहा है, बोन्स को किससे कनेक्ट कर रहा है, हमारी मसल्स से कनेक्ट कर रहा है, तो बोन्स को किससे कनेक्ट कर रहा है, मसल्स, एंड मसल्स के कारण आप सभी को पता है क्या हो रहा है, जैसे मूवमेंट्स हो रही हैं, ओवरऑल हमारी क्या जो मूवमेंट्स है वो किसके कारण हो रही है, मसल्स के कारण ही हो रही है, तो क्या है, टेंडन क्लियर है, लिगामेंट क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एरियोलर टिश्यू, इट फिल्स द स्पेस बिटवीन स्किन एंड मसल्स। अब जो हमारे मसल्स एंड स्किन के इन बिटवीन स्पेस है उसे कौन फिल कर रहा है, एरियोलर टिश्यू फिल कर रहा है, और जितनी भी हमारी ब्लड वेसल्स है, बॉडी में ऑर्गन्स प्रेजेंट है, उनमें जितनी भी स्पेस है और जितने भी टिश्यू है उनकी रिपेयरिंग का काम वो सब कौन कर रहा है, एरियोलर टिश्यू कर रहा है। नेक्स्ट क्या है, एडिपोज टिश्यू। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द एडिपोज टिश्यू, कहते हैं इट इज फाउंड बिलो द स्किन एंड बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन्स। जो हमारी स्किन है और जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स है, इन दोनों के इन बिटवीन कौन प्रेजेंट होता है, एडिपोज टिश्यू होता है। इसमें मोस्टली कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं, फैट सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जो फैट स्टोर्ड फॉर्म में क्या है, जो एडिपोज टिश्यू में प्रेजेंट होता है। ओके रजे, सो दीज आर द टाइप्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। फर्स्ट हमने क्या स्टडी किया, ब्लड, द सेकेंड वन इज द बोन, द थर्ड वन इज द लिगामेंट, फोर्थ वन इज द टेंडन, fifth one is the areolar tissue, and the sixth one is the adipose tissue. Okay, Raja, sixth one is the adipose tissue. Okay, now we are going to look at next slide. That is the components of the blood. These are the components of the blood, meaning a structure showing the blood. जो हमारे पास ये स्ट्रक्चर क्या शो कर रही है, रजे ब्लड शो कर रही है, a structure showing the blood components। तो इसमें आपके पास क्या है, ब्लड सेल्स हैं, फर्स्ट इज रेड ब्लड सेल्स, आरबीसीज, द सेकंड दीज आर द प्लेटलेट्स। हमने 3 टाइप्स के सेल्स किए थे ना, प्लेटलेट्स, आरबीसीज, एंड द नेक्स्ट इज द व्हाइट ब्लड सेल्स, एंड दिस फ्लूइड इज द प्लाज्मा। और जो फ्लूइड हमारे पास क्या है, रजे प्लाज्मा है। ओके, क्लियर। सो दीज आर द components, or you can say blood corpuscles as well as प्लाज्मा इन फॉर्म ऑफ ब्लड वेसल। किसी भी ब्लड वेसल्स में से जो ब्लड आ रहा था उसमें से डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स आपको शो किए हुए हैं। लिगामेंट एंड टेंडन, जो आपको क्या क्लियर कर रही है स्लाइड की, लिगामेंट क्या होता है और टेंडन क्या होता है। ठीक है, जैसे टेंडन क्या होता है, जो कि हमारे पास वन बोन 2 बोन्स को कनेक्ट कर रहा था, वन बोन सेकेंड बोन, जो बोन्स को कनेक्ट कर रहा था उसे हम क्या, टेंडन वाइंड्स मसल्स टू द बोन्स। थोड़ी गलती हो गई थी, टेंडन क्या है, जो हमारा मसल्स है ना, जो हमारे स्केलेटल मसल्स है, तो और ये बोन है, बोन और मसल्स को क्या है, कनेक्ट कर रहा है। और लिगामेंट हमारे पास क्या है, जो हमारे बोन और बोन, जैसे कि ये फिंगर्स है मेरी, इसकी और ऊपर वाला पोर्शन है, दोनों फिंगर्स की जो बोन्स को किसने क्या कनेक्ट किया हुआ है, दैट आर कनेक्टेड बाय द लिगामेंट। ऐसे मैंने आपकी एग्जांपल दी थी, जो आपकी सभी फिंगर्स में क्या है, जो हमारे बोन्स हैं उनको कैसे कनेक्ट किया गया है, विद द लिगामेंट। ज्वाइंट कैप्सूल्स है जो वहाँ पे क्या प्रेजेंट है, लिगामेंट्स प्रेजेंट है, मीनिंग बोन टू बोन अटैचमेंट एंड बोन टू मसल अटैचमेंट। And the next is, this is areolar tissue, adipose tissue. These are the fat cells. These all are the fat cells that present below our skin. These all are the fat cells. Okay, Razi. This is areolar tissue. Okay, this is bone tissue and this is cartilage. Cartilage आपको पहले क्लियर कर दिया था मैंने। Okay, Ravi, so these are the some slides to show the diagrams, or you can show the structure of different types of the tissues. The last part that we are going to cover, nerve tissue, nervous tissue. हाँ जी, तो नर्व्स टिश्यू क्या होता है वैसे, नर्व्स टिश्यू मीनिंग क्या है, नर्व्स क्या है, दैट कैरी मैसेज फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी एंड रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलाई। जैसे सिंपल सी बात है, सपोज अगर क्या है आपका हैंड क्या है, एक हॉट टी कप से क्या है
कॉफ़ी से क्या है, कॉफ़ी कप का इधर टी कप से क्या है टच हो जाता है, तो फटाफट से आप अपनी फिंगर्स को पीछे को खींच लेते हो ना। मीनिंग क्या है, आपकी बॉडी में एक मैसेज गया कि वो कप क्या है, हॉट है। जैसे वो मैसेज नर्व्स के आपके ब्रेन तक लेकर गई तो ब्रेन ने क्या रिस्पॉन्ड दिया कि यू हैव टू, तो ब्रेन ने क्या मैसेज दिया, यू हैव नॉट टू टच दैट कप। आप अपना हैंड क्या है पीछे खींच लेते हो क्योंकि आपको पता चल जाता है कि वो डेंजरस है, हॉट है आपके लिए। तो वही हमारे पास क्या है रजे, जो नर्व्स टिश्यू में क्या पूरे का पूरा प्रोसेस होता है, जो क्या है मैसेज को कैरी करके लेके जाना, फिर उस पर रिस्पॉन्स देना। कहते हैं व्हाट इज नर्व्स टिश्यू। नर्व्स टिश्यू क्या है, helps to carry message from one part of the body to the other and respond to the stimuli। और वापस में जो रिस्पॉन्ड देना है कि आपने एक्शन क्या लेना है इस चीज पे, इट इज फाउंड इन द ब्रेन, स्पाइनल कोड, नर्व्स। पूरी बॉडी में नर्व्स प्रेजेंट है। और इधर हमारा जो CNS है, सेंट्रल नर्व सिस्टम है, जिसमें क्या जाता है ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। CNS सेंट्रल नर्व सिस्टम के 2 पार्ट्स होते हैं, वन इज द मेन पार्ट दैट इज ब्रेन एंड द सेकंड इज द स्पाइनल कोड। नेक्स्ट क्या है, इट कंसिस्ट्स ऑफ नर्व सेल्स। अब कोई भी टिश्यू है वो किससे फॉर्म होता है, सेल्स से होता है। सो नर्व टिश्यू इज फॉर्म फ्रॉम द नर्व सेल्स और यू कैन से न्यूरॉन्स। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ nerve cell or you can say neuron. That is basically structure of the nerve cell. This is the basic structure of the nerve cell. नर्व सेल में आपके पास क्या है, 3 पार्ट्स होते हैं इसके। एक तो क्या होता है, फर्स्ट पार्ट होता है जो आपका इसके सबसे पहले वाला पोर्शन होता है, उसमें आपके पास आ जाता है न्यूक्लियस आ जाता है, सेल बॉडी आ जाती है और डेंड्राइट्स आ जाते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या है, डेंड्राइट्स मीनिंग करते हैं जो ब्रांचेस होती है, ब्रांचेस लाइक स्ट्रक्चर दैट इज डेंड्राइट्स। ओके, सेकंड आएगा आपके पास क्या रहता है, सेंटर में एक न्यूक्लियस आ जाता है और जो साइटोप्लाज्म की जगह जितना भी न्यूक्लियर प्रेजेंट होता है बिटवीन द न्यूक्लियस एंड डेंड्राइट्स, उसे हम क्या बोलते हैं, सेल बॉडी। उस पूरे पोर्शन को हमने क्या कहा, सेल बॉडी। और नेक्स्ट क्या होता है आपके पास क्या है, एक ब्रांच एक्सटेंड होती है फ्रॉम द सेल बॉडी, जिसे हम क्या बोलते हैं, एक्सोन। इस पूरी की पूरी लॉन्ग जो लॉन्ग हमारे पास क्या है, एक पोर्ट है, एक हम कह सकते हैं जो लॉन्ग पार्ट अराइज हो रहा है एक नर्व सेल की सेल बॉडी से, उसे हमने क्या नेम दे दिया, एक्सोन। और एक्सोन में क्या है, जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं उनको क्या है, माइलिन शीट से क्या है कवर किया जाता है। विच शीट है, माइलिन शीट। और जो क्या है इनके इन बिटवीन थोड़ी सी स्पेस और एक सेल दूसरे सेल से कनेक्ट होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, नोड ऑफ रेनवीर, नोड ऑफ रेनवीर। और लास्ट पार्ट क्या है, जो एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आ रही है, इनको हम क्या बोलते हैं, एक्सोन टर्मिनल और यू कैन से एक्सोन एंडिंग। आप टर्मिनल भी बोल सकते हो, एक्सोन टर्मिनल और एक्सोन एंडिंग। So you know one nerve cell is connected to the other nerve cell and they pass, एक मैसेज जहाँ से आ रहा है ऐसे ऐसे जाएगा, क्या है, नेक्स्ट नर्व सेल। तो क्या 2 नर्व सेल्स का कनेक्शन कैसे होता है, ये देखिए। जे इसका हेड है, डेंड्राइट्स ने मैसेज रिसीव किया, कोई भी स्टिमुलस है, कोई भी स्टिमुलस क्या होता है, एनी एक्सटर्नल चेंज जो हम फेस कर रहे हैं, तो क्या उसने रिसीव किया डेंड्राइट से, वो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से क्या है वो एक्सोन, एक्सोन एंडिंग। अब एक्सोन एंडिंग के साथ क्या है, सेकंड न्यूरॉन, सेकंड नर्व सेल का जो डेंड्राइट वाला पोर्शन है वो अटैच हो एक गैप के साथ। जैसे जो जहाँ पे एक न्यूरॉन की एक्सोन एंडिंग एंड सेकंड न्यूरॉन का जो हम कहते हैं डेंड्राइट वाला पोर्शन क्या है, एक दूसरे के कनेक्शन में आता है मैसेज रिसीव करने के लिए, उस जगह को हम क्या बोलते हैं, सिनेप्सिस। तो जहाँ से क्या है वो मैसेज क्या है, जो हम कहते हैं बाहर छोड़ देगा, जो जहाँ पे केमिकल प्रेजेंट होता है, वैसे वो मैसेज क्या है आगे डेंड्राइट्स फटाफट से क्या है कैप्चर कर लेंगे और आगे ट्रांसपोर्ट होता जाएगा। ऐसे ऐसे करके जो मैसेज है वो हमारे सेंट्रल नर्व सिस्टम ब्रेन तक क्या है पहुँच जाएगा एंड ब्रेन वर्क्स ऑन इट एंड आफ्टर दैट ब्रेन एंड रिस्पॉन्स कि आपको क्या करना है, वो भी एक मैसेज की फॉर्म में आता है। सारे के सारे नर्व टिश्यू लेके आते हैं एंड पे आपकी मसल्स को वो मैसेज मिल जाता है कि हाथ पीछे कर लो और कुछ भी अदर मैसेज होता है। सो दिस इज द वर्किंग ऑफ द नर्व टिश्यू और यू कैन से नर्व सेल। इस बार हमें ज़्यादा डिटेल में नहीं था, 10th क्लास में यही नर्व सिस्टम हम फुल डिटेल में करेंगे कि व्हाट इज CNC, PNC, कैसे वर्किंग हो रही है, सारा हमने डिटेल में करना है। इस बार आपको इतना ही था, तो आई होप सो you have no doubt in this chapter. Still if you have any problem or query you can message or call me. Thank you Raze. With this our tissue chapter is completed. Thank you.